Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So guys, today is 28th of December 2023 and today again we are gonna do an interesting challenge. So guys, in my previous video we studied for 6 hours and today we are gonna study until the candle burns out. So for today's challenge I have this one candle, but इससे पहले मेरे पास ये वाली candle थी, but ये ना as compared to this one ये थोड़ी सी छोटी भी है and थोड़ी सी पतली भी है. So I thought कि this will not work out because ये जल्दी खत्म हो जाएगी and we will not be able to study for long hours. And अगर हम ये वाला challenge कर रहे हैं कि studying until the candle burns out, so I thought कि we should have a pretty good candle to do this one. So I went to the shop yesterday and I bought this one candle. तो ये उनके पास last size था of the candle, तो मैंने बोला कि जितनी भी मोटी और बड़ी candle है वो मेरे को दे दो. So they gave me this one candle and as compared to this it is pretty good I guess, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी भी है थोड़ी सी मोटी भी है. So I guess this will work out for today's challenge and I'm pretty excited to know कि ये कितनी देर तक चलती है and let's see कि आज हम कितने hours तक पढ़ पाते हैं. So I guess let's get started with today's video and let's get into it. Hey guys, so before getting into today's video, I just want to tell you all about this thing कि which all sample paper books I am using and आपने मुझसे कई लोगों ने पूछा था कि हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए और आप कौन सी यूज़ कर रहे हो. So let me tell you all about that. तो सबसे पहले guys, I am using the PW sample paper books and they are pretty good because मैंने ना इनसे ना एक दो sample paper जो है solve किए थे and they are really good. So now let me tell you all guys कि what all is inside this book properly. मैं अंदर से आपको अच्छे से दिखा देती हूँ. एंड गाइज ये वाली बुक आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी एंड आप इसको PW स्टोर से भी बाय कर सकते हो एंड मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो SABI150 फॉर डिस्काउंट. सो गाइज नाउ लेट्स गेट इनटू द बुक एंड लेट्स सी दैट व्हाट ऑल दिस बुक कंटेन्स. So guys, now let us get into this book and let us see that what all this book contains. So from the very front page आपको clear हो जाएगा कि इसमें 15 sample question papers हैं and it also contains cheat sheets to revise your concepts and it is based on the CBSE sample question paper of this year. उस पर latest जो pattern है उस पर based है and it contains CBSE 2023 solved paper along with the sample question papers and additional practice question papers of this year that are officially released by CBSE and it also has a detailed explanation with step-wise marking that is pretty good. तो अगर हम इसको अंदर से देखें तो let us see from the very starting इसमें क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं. सो एट फर्स्ट वी सी दैट हेयर इज सिलेबस. तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है रिलेटेड टू सिलेबस आप यहाँ से अपनी क्लियर कर सकते हो. लाइक हमारे सोशल साइंस में ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है डिलीट हुई हैं. तो अगर आपको उसके रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आपको कोई भी साइट पर जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी वीडियोज़ देखने की जरूरत नहीं है. आप यहाँ पे सीधा इस पेज को खोलो और आप देखो कि आपकी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या क्या चीज़ें डिलीटेड हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू ऑल द एग्जाम्पल. तो फॉर एग्जाम्पल हमारी हिस्ट्री में ना मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर है, उससे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं. सब टॉपिक्स 1 to 1.3 तक ही आ रहा है. तो इससे आप क्लियर हो सकता है कि आपको क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या क्या नहीं आ रही हैं. सो द वेरी नेक्स्ट थिंग जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज रहते हैं वो है मैप आइटम्स. तो यहाँ पे ना उसकी एक सेपरेट लिस्ट दी हुई है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे सिलेबस में ना क्या क्या मैप आइटम्स हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं. सो हिस्ट्री का भी यहाँ पे दिया हुआ है एंड ऑल्सो ऑफ ज्योग्राफी इट इज़ ऑलरेडी क्लियरली मैंशन कि हमारे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं. If you move to the next thing, that here is a weightage of different types of question and weightage of competency level questions. ये कितनी weightage है हमारे एग्जाम में, इससे आपको बहुत ही क्लियर आइडिया लग जाएगा. अब लेट वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज हाउ टू रॉक योर बोर्ड एग्जाम. सो दीज आर ऑल द लास्ट मिनट टिप्स जो कि आपको बोर्ड एग्जाम देने से पहले याद रखनी है. लाइक डबल चेकिंग योर एडमिट कार्ड, स्टेशनरी, वाटर बॉटल एंड रिस्ट वॉच. एंड रिस्ट वॉच में एक स्पेशली चीज़ें मैंशन की हुई है कि आपको डिजिटल वॉचेस अवॉइड करनी है क्योंकि ये अलाउड नहीं होती हैं. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें जो लास्ट मिनट टिप्स में याद रखनी है. उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास सेल्फ असेसमेंट शीट. इट इज़ लिटरली गुड गाइस. मेरे को ये वाली चीज़ ना काफ़ी अच्छी लगी है. लाइक यू विल बी सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पल पेपर्स. इसमें जितने भी सैम्पल पेपर्स आप सॉल्व करोगे फर्स्ट अटैम्प्ट में जितने भी आपके मार्क्स आएंगे यू विल बी राइटिंग इट ओवर हियर एंड जब आप उसको दूसरी बार अटैम्प्ट करोगे यू विल बी राइटिंग योर रीमार्क्स ऑल्सो ओवर हियर. तो आप देख सकते हो कि आपको इंप्रूवमेंट जो है ना वो कितनी हुई है. सो दिस इज लिटरली वेरी गुड. तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, ये आप काफ़ी अच्छा है. इससे आपको है ना अपनी जो आप कर रहे हो ना उसका एक एनालिसिस लगता रहेगा कि हाउ मच आई एम इम्प्रूविंग इन माई ऑल द सैम्पल पेपर्स. सो अगर हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं दैट इट इज स्टेप वाइज चैप्टर वाइज वेटेज. हम पास्ट 5 ईयर्स को एनालाइज करके वेटेज देखी गई है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने कौन से चैप्टर ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड. तो इससे आपको है ना क्लियर आइडिया लग जाएगा. नेक्स्ट थिंग वी कम हेयर इज कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ दिस ईयर सैम्पल पेपर एंड प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर कि कितने मार्क्स के MCQs कौन से चैप्टर से एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कितने आए थे. तो इससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा. उसके बाद वी हैव हेयर अ इंडेक्स. तो इसे आप देख सकते हो कि कितने लाइक कौन से पेज पे क्या क्या है एंड सैम्पल पेपर्स आर ईजी, मीडियम एंड हार्ड लेवल. दैट इज प्रेटी गुड. सो हेयर वी कम अप विद चीट शीट. तो यहाँ पे आपको देख सकते हो फ्लो चार्ट की हेल्प से ना आपको जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा समराइज किया गया है. इससे आपके जो टॉपिक्स हैं वो जल्दी जल्दी ना क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ये चीज़ें जो थी हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी.
सो दिस इज लिटरली वेरी गुड कि फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको ये चैप्टर्स ना इतने अच्छे से क्लियर किए गए हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग देन हेयर यू ऑल कैन सी द वेरी वर्स्ट सैम्पल पेपर. तो ये जो सैम्पल पेपर है ये CBSE ने इशू किया था. ये वो वाला सैम्पल पेपर है एंड इट इज सॉल्व. उसके बाद अगर मैं चलूँ नेक्स्ट सैम्पल पेपर पर, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन पेपर. तो आप इसमें देख सकते हो कितने अच्छे से MCQs वगैरह सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द आंसर शीट जो इसमें दी हुई है इन सैम्पल क्वेश्चन पेपर की, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बेसिकली. सो एज यू कॉल लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल. तो इसमें आपको ना मिस्टेक्स भी दी हुई है कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है कोई भी पर्टिकुलर आंसर लिखते वक्त. तो इस टाइप से मिस्टेक दी हुई है. इट इज़ लिटरली वेरी गुड. अगर आप आंसर की देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार मुझे ये वाली मिस्टेक नहीं करनी थी. एंड ऑल्सो हेयर इज वन मोर राइट बॉक्स दैट इज नेलिंग द राइट आंसर. इसमें बहुत एक्स्ट्रा टिप्स दी हुई है कि अगर आपको आंसर को और अच्छे से लिखना है तो आप ये वाली टिप्स ना यूज़ कर सकते हो. सो दीज आर लिटरली वेरी गुड एंड दीज आर 10 on 10 गाइज. अगर आपको ये बाय करनी है सो यू कैन गो फॉर इट, डेफिनेटली गो फॉर इट. इट इज़ लिटरली वेरी गुड. सो गाइज नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैलेंज. तो सबसे पहले मैंने सुबह उठ के आफ्टर टेकिंग अ बाथ आई डिड पूजा. तो सबसे पहले मैंने पूजा की एंड उसके बाद मैं चली गई पढ़ने. सो गाइज यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जो कैंडल जिसकी मैंने आई एम गोना लाइट दिस कैंडल राइट नाउ. लेट्स गो गाइज एंड लाइट दिस आउट एंड देन वी विल बी गेटिंग स्टार्टेड विद टुडेज चैलेंज. सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट ब्लॉक ऑफ टुडेज चैलेंज. तो आज मैंने अपना दिन स्टार्ट किया बाय स्टडिंग साइंस. तो साइंस में जो मैं पढ़ रही हूँ वो है बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर दैट इज आर एनवायरनमेंट. तो दिस इज अ लास्ट चैप्टर जिसके मेरे नोट्स बनाने बचे हैं. इसके बाद मेरे बायोलॉजी के हर एक चैप्टर के नोट्स बन जाएंगे. एंड रिप्रोडक्शन के मैंने क्यों नहीं बनाए थे ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया था. इफ़ यू हैवंट वॉच्ड आप जाके देख सकते हो. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इफ़ यू वांट टू वॉच इट. सो गाइज वंस दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड मेरी पूरी साइंस के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो वैसे ही कंप्लीट करके रखे हैं. बस ये वाला बायोलॉजी के बचे थे एंड एनवायरनमेंट वाले चैप्टर कंप्लीट होते ही मेरे बायोलॉजी के नोट्स भी पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे. एंड गाइज वैसे तो मैंने अपने फोल्डर की लिंक दे दी है जहाँ से कि आप मेरे नोट्स को एक्सेस कर सकते हो. बट सम ऑफ यू आर अनेबल टू फाइंड इट. तो इस वाली वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उस फोल्डर की लिंक दे दूंगी ताकि आप उधर से चेकआउट कर सको. ऑल्सो मैं टेलीग्राम की लिंक भी दे दूंगी क्योंकि उसमें भी मैंने सारे नोट्स पोस्ट कर रखे हैं. एंड इन केस मैंने कोई चैप्टर के नोट्स अभी तक पोस्ट नहीं किए तो उनको मैं जल्दी कर दूंगी. बट इफ यू वांट यू कैन चेकआउट माई टेलीग्राम और यू कैन चेकआउट दिस वीडियोज डिस्क्रिप्शन फॉर द फोल्डर्स लिंक. एंड गाइज लाइक आई एम गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग द सैम्पल पेपर्स एंड द PYQs क्योंकि मेरा अभी प्री बोर्ड जो 2 हैं वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं. लाइक फ्रॉम द 8th of January दे आर गोना स्टार्ट. एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी चैप्टर्स मेरे पेंडिंग है लाइक जितने भी चैप्टर्स के नोट्स पेंडिंग है मैं वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टार्ट सैम्पल पेपर्स. सो गाइज करेंटली इट्स 1 hour and 16 minutes एंड अभी मैंने इसको बुझा दिया है बिकॉज आई एम गोना गो फॉर माई ब्रेकफास्ट. तो ब्रेकफास्ट के आने के बाद वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द साइंस अगेन बिकॉज अभी मैं इस पेज पे हूँ एंड आई विल बी डूइंग दिस वन मोर पेज लाइक जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. देन दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. सो गाइज लेट्स गो फॉर द ब्रेकफास्ट राइट नाउ एंड देन विल बी कम बैक अगेन एंड देन विल बी गेट बैक टू साइंस. सो गाइज here I'm back again and here I'm again doing the chapter that is our environment क्योंकि मेरे लास्ट पे जिसके नोट्स मेरे बचे थे उसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं. उसके बाद हमारी साइंस कंप्लीट हो जाएगी. बट हमारी सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है मेरा वो अभी भी बचा हुआ है. उसके जो सिविक्स के कुछ चैप्टर्स हैं उसके नोट्स मेरे बाकी हैं एंड प्रिंट कल्चर हिस्ट्री में जो है उसके बाकी हैं एंड एक ग्लोबलाइजेशन वाला जो चैप्टर इकोनॉमिक्स में उसके नोट्स बाकी हैं. सो व्हाट आई एम थिंकिंग ना जैसे हमारी साइंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ना मैं पूरे दिन ना साइंस को थोड़ा सा ब्रेक दे दूंगी क्योंकि मेरी साइंस कंप्लीट है उसके नोट्स कंप्लीटेड है तो मुझे बस उसके सैम्पल पेपर शुरू करना है. बट सोशल साइंस कंप्लीट नहीं है इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं पूरे कोई एक दिन जो है ना सिर्फ सोशल साइंस के 1-2 चैप्टर से करूंगी. मैथ्स करूंगी साथ में बट साइंस आई विल नॉट बी डूइंग बिकॉज इट इज कंप्लीटेड. सो आई विल बी गिविंग इट अ ब्रेक एंड आई विल बी डूइंग सोशल साइंस 1 to 2 चैप्टर्स इन अ डे ताकि मैं ना 1-2 चैप्टर्स एक दिन में कंप्लीट कर लूँ. इससे ना गाइस मैं सोशल साइंस का सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. फिर मैं सैम्पल पेपर स्टार्ट करूंगी.
Hey guys, so right now I am done with my chapter R environment. उसके notes मैंने अच्छे से complete कर लिए हैं and it's 2 hour 8 minutes right now. So now I will be starting with my next subject. Basically I will be doing civics and civics में political parties वाला chapter start करेंगे and उसकी revision series देखने वाली हूँ and we will be making the short notes of that chapter. So I guess guys, without wasting any further time, let's go and let's get started with civics right now. So guys, here is the time, that is 2 hours and 8 minutes, and now let me show you all that how much notes I have made of this chapter. So this is the very last page of this chapter guys, and this is what I have made. So all the things I have included, मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, almost हर एक चीज़ है मेरे इस वाले चैप्टर के नोट्स के अंदर, and it is finally done. सो गाइज नाउ फाइनली वी आर स्टार्टिंग विद अब सोशल साइंस, डेट इज सिविक्स. तो सिविक्स में जो चैप्टर कर रही हूँ वो है पॉलिटिकल पार्टीज. तो इसके जैसे मैं जेंडर रिलीजन वाले चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसी तरीके से इस वाले चैप्टर के भी मैं शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ बाय वाचिंग द रिवीजन सीरीज ऑफ द ग्रास सर. सो गाइज वंस दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड आई विल बी स्टार्टिंग अप विद द नोट्स ऑफ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, एंड उसके बाद मैं फेडरलिज्म चैप्टर के बनाऊंगी. आई वाज थिंकिंग कि मैं पावर शेयरिंग के बनाऊँ या ना बनाऊँ, बट अगर मेरे पास टाइम बना तो मैं बना लूँगी, वरना उसको छोड़ देंगे. हम सिर्फ फेडरलिज्म के बना लेंगे और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की बनाऊंगी. दिस इज़ फॉर श्योर कि मैं फेडरलिज्म और आउटकम्स के बनाने वाली हूँ, बट पावर शेयरिंग आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन. सो नाउ गाइज, लाइक सम ऑफ यू वर आस्किंग कि हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड विद योर स्टडीज़. सो बेसिकली गाइज, जितना मैंने अभी नोटिस किया ना इन 3 days जो मैंने चैलेंजेस किए हैं, कि है ना चैलेंज की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गई हूँ और मोटिवेटेड हो गई हूँ. क्योंकि चैलेंज से मेरे को ये लगता है कि हाँ यार, मेरे को इतने घंटे पढ़ना है एंड मेरे को ये चैलेंज कंप्लीट करना ही है. इससे मेरे को एक तो मोटिवेशन भी रहती है, एंड अगर मैं डेली चैलेंजेस कर रही हूँ तो इससे मेरी कंसिस्टेंसी भी ना बनी रहती है. सो इफ़ यू वांट गाइज, तो एक बार आप ये जो चैलेंजेस हैं इनको ट्राई करके देख सकते हो. आप हर एक दिन ना अलग अलग चैलेंज कर सकते हो, या फिर एक दिन छोड़ के अगले दिन ना कोई ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस कर सकते हो. इससे आपकी ना कंसिस्टेंसी फॉर श्योर बनी रहेगी एंड आपको ना मोटिवेशन भी मिलता रहेगा. सो यू ऑल कैन ट्राई दिस आउट. Hey guys, so right now I was doing the chapter political parties and मैं last second वाले topic पे थी, challenges वाला topic. But right now I guess I have to switch my subject to maths, क्योंकि मेरा जो laptop है ना उसमें जो video है वो play नहीं हो रही है, because my laptop is hanged, so I have to wait for it कि कब जाके ना normal होगा और ये ठीक हो जाएगा and videos में start करूँगी दोबारा से. But I guess उसमें ना थोड़ा सा time लग जाएगा, so I don't have to waste my time right now. इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं maths तो मुझे करनी थी and अभी ये थोड़ा सा hang हो गया, तो I guess it will take a lot it will take some time to recover again. तो मैं सोचा कि मैथ्स स्टार्ट कर देते हैं. तो आज मुझे मैथ्स का चैप्टर करना था, वो था ट्रायंगल्स. सो आई गेस गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद मैथ्स राइट नाउ. एंड गाइज, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू ऑल कि ना इसमें वीडियो तो चल नहीं रही है, बट आई विल ट्राई कि मैं स्टॉप वॉच इसमें चला सकूँ, बिकॉज आई वांट टू शो यू ऑल द टाइम की. बिकॉज अभी आप कैंडल भी एक बार देख लो, जो कैंडल है वो भी अभी लाइक ऑलमोस्ट फिनिश ही होने वाली है. सो आई हैव टू सी द टाइमिंग कि कितने टाइम तक ये फिनिश हो रही है. तो आई गेस आई विल बी सेइंग कि मैं स्टॉप वॉच चला सकूँ, बट आई गेस वीडियो विल नॉट बी एबल टू प्ले. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद मैथ्स. सो गाइज, आई स्टिल वेटेड फॉर 5 minutes की जो लैपटॉप है वो रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दे, बट इट डिडेंट रिस्पॉन्ड. एंड इसलिए ना मैंने समहाउ आई मैनेज टू स्टार्ट द स्टॉप वॉच, बट वीडियो तो चल ही नहीं रही थी. सो मैंने सोचा कि चलो स्टॉप वॉच चल रही है, इतना काफ़ी है, आई हैव टू जस्ट रिकॉर्ड द टाइम. सो गाइज, हियर आई एम स्टार्टिंग अप विद मैथ्स. तो मैथ्स में जो मैं चैप्टर कर रही हूँ वो है ट्रायंगल्स. सो गाइज, मैंने जो अपने पिछले 2 challenges थे ना, उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री के दोनों चैप्टर काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं. एंड मेरे रोड मैप के अकॉर्डिंग ना नेक्स्ट चैप्टर जो था वो था ट्रायंगल्स. तो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल्स चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया. आई गेस गाइज लाइक हाफ या फिर पूरा तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए आज के दिन में ट्रायंगल्स. आई विल होप कि ये पूरा कंप्लीट हो जाए, बिकॉज नेक्स्ट दिन से मुझे एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है. आई विल लुक इनटू इट कि मेरे रोड मैप में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, बट फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन ट्रायंगल्स. सो गाइज, बेसिकली ना आई एम ट्राइंग कि आई विल बी डूइंग प्रैक्टिस ऑफ मैथ्स डेली, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको अपने प्री बोर्ड्स के मार्क्स दिखाए थे एंड इन मैथ्स दे वर नॉट रियली गुड. तो मैंने सोचा था कि मैं ना डेली प्रैक्टिस करूँगी मैथ्स की. एटलीस्ट एक चैप्टर जो है मुझे पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है मैथ्स का, ताकि अगर मैं सारे चैप्टर्स एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो मैं सैम्पल पेपर्स भी स्टार्ट कर दूँगी एंड PYQs भी स्टार्ट कर दूँगी. सो हेयर आई एम प्लानिंग कि आई हैव अ टारगेट कि मेरे को हर एक दिन ना एक चैप्टर कंप्लीट करना है, एंड लास्ट जो 2-3 दिन बचेंगे उसमें मैं सैम्पल पेपर्स और बस PYQ सॉल्व करने वाली हूँ. एंड गाइज लाइक सम ऑफ यू आर आस्किंग मी कि PYQs या फिर सैम्पल पेपर्स में से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करना. सो बेसिकली गाइज, अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू ऑल द टीचर्स दैट टोल्ड अस अबाउट द सेम, कि PYQ एंड जो सैम्पल पेपर्स हैं वो दोनों बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. तो आपको ना डेली बेसिस पे तो नहीं कर सकते आप दोनों एक साथ. तो एक दिन आप PYQ कर सकते हो, एक दिन आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो. बेसिकली गाइज, मैं भी एक दिन PYQ करूँगी और एक दिन सैम्पल पेपर करूँगी. तो जिस दिन भी मैं ये इन दोनों में से कोई भी अगर सॉल्व करने वाली हूँ तो इसकी स्ट्रैटेजीज और ट्रिक्स आपको ना उसी दिन के ब्लॉग में
मैं आपको बताती रहूँगी, सो यू ऑल कैन गेट अ क्लियर आइडिया कि व्हाट आई एम डूइंग एंड हाउ यू ऑल कैन फॉलो द सेम थिंग. So guys, it's 5 hours and 19 minutes and this candle has finally burned out. Like आप देख सकते हो साइड में थोड़ा सा जो है वैक्स बचा है, बट जो इसका थ्रेड होता है it has completely burned out. तो ये ख़त्म हो गई इतनी. तो हमने 5 घंटे and 20 minutes के अराउंड हमने पढ़ा है and this candle took this much time to completely burn out. And let me tell you all कि मैंने अभी तक मैथ्स में कितना कंप्लीट कर लिया. Like मैंने ना फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल्स एंड फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली है. सेकेंड एक्सरसाइज जो है हमारी 6.3 इसके सारे एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है. आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये खत्म हो गई. सो गाइज वी हैव फाइनली डन दिस चैलेंज एंड आई एम प्रिटी गुड. लाइक ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चैलेंज रहा. इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग. Hey guys, so we have finally completed this challenge and I will meet you all in my next video with a new challenge. तब तक के लिए टाटा, bye bye, take care.